Good morning, student of class 7. I am a computer teacher Shunjit sir. Hope you all are fine. Today, I am going to start a new chapter, chapter number 7, database and DBMS and introduction. Okay, chapter number 7, database and DBMS and introduction. Okay, so let's start. And this is the syllabus for second term examination. And I have already completed chapter number 5 and chapter number 6. And today I am going to discuss the chapter number 7. And your second term examination will be start from 15th of नवंबर. ओके, 15th ऑफ नवंबर से आप लोगों का जो सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट होगा. ओके, this is the content of this chapter. In this video I am going to discuss about introduction to database, structure of database, Microsoft Access. Microsoft Access means Microsoft जो पैकेज है, ऑफिस का जो पैकेज है उसमें एक्सेल आता है, एक्सेस आता है, वर्ड आता है. उसमें से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. कंपोनेंट्स ऑफ एमएस एक्सेस, स्टार्टिंग एक्सेस, creating a new database, viewing tables, rules for naming a field, data type, setting the data type for a field, primary key, saving a database, closing a database and opening an existing database. All these topics I am going to discuss in this video. Okay, so this video is very important. So now move on to the main topic. Okay, so first is introduction to database. Okay, all of you must see that at home how our parents organize an important document in a file so that can easily access them whenever required. Okay, similarly in place like office, school and hospital, data is maintained so that they can retrieve easily whenever needed. Okay, that means आप लोग देखोगे कि हम लोग के घर में भी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ को बहुत सी ऑर्गेनाइज तरीके से हम लोग अलग अलग तरीके से रखते हैं ताकि हम लोग बाद में उसको ढूंढने में आसानी हो. सिमिलरली ऑफिस वर्क में भी क्या होता है कि लाइक ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, जो डेटा है, जो बहुत सारा डेटा है उसको भी ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है. ओके, ताकि जब भी उसका जो ज़रूरत पड़े डेटा का हम लोग आसानी से उसको एक्सेस कर पाए. ओके, a database helps us to organize the collected data in a tabular format. Tabular format means table. Okay, table wise, rows and column wise. Okay, it allows you to enter, access and analyze data. It helps you to retrieve the required information easily. A database is defined as a organized system to store and maintain data. Okay, so database means जो एक database क्या होता है कि वो एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है और वो क्या करता है कि जो डेटा है उसको ऑर्गेनाइज करता है, स्टोर करता है और मेंटेन भी करता है डेटा को. ओके, फॉर एग्जांपल ए लिस्ट ऑफ नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन ए ऑर्गेनाइजेशन in the form of a table in a database. A table cannot be organized and maintained in Excel as per spreadsheet provides limited features of our database. Therefore, we need a different application software to manage and maintain the database. The application software that creates and maintains a collection of database is called DBMS, means database management system. Okay, database management system manage all the function of a database. MS Access, one of the software of Office, is a is an example of DBMS. So DBMS क्या होता है कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है बेसिकली. ओके, और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो डेटा हो गया है, डेटा हम लोग वहाँ पे स्टोर करेंगे, उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं. ओके, मैनेज भी कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं, जो कि एक्सेल में कुछ कुछ फार्मूलाज नहीं है इसीलिए हम लोग वहाँ पे नहीं कर सकते, जो एक्सेस में हो सकता है. ओके, एंड एक्सेस इज ए एग्जाम्पल ऑफ ए डेटाबेस सॉफ्टवेयर. ओके, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. ओके, next is types of database. Okay, there are basically two types of database: flat file database and relational database. Okay, flat file database and relational database, there are two types of database. So first is flat file database. A flat file database store file that mainly contain records of fixed number of fields. Okay, fixed number of fields and without any structure relationship. Okay, that means जो फ्लैट बेड डेटाबेस है वो एक फिक्स्ड नंबर ऑफ फील्ड्स मीन्स रो या कॉलम, उसको हम लोग फील्ड्स बोलते हैं. ओके, और जो डेटा होगा लाइक रोल नंबर, सेक्शन, ये सब फील्ड्स होता है. ओके,
हम लोग बाद में जाके जब हम लोग देखेंगे कैसे टेबल क्रिएट किया जाता है तब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो फिक्स नंबर ऑफ फील्ड्स विदाउट एनी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप भी इसमें नहीं होता। ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एन एग्जांपल ऑफ ए फ्लैट टाइप डेटाबेस। ओके, हम लोग एक्सेल में क्या कर सकते हैं कि एक जो टेबल है दूसरे टेबल से हम लोग उसको रिलेट कर पाएंगे मतलब उसको लिंक कर पाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप बोलते हैं। ओके, जो कि एक्सेल में नहीं होता। ओके, इसलिए एक्सेल क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए फ्लैट file database and relational database organize data into a series of a record in a linked table। ओके, हम लोग एक टेबल से दूसरे टेबल को लिंक कर सकते हैं एक्सेस में, जो कि वो एक्सेल में नहीं होता। ओके, Microsoft Access and Oracle are example of relational database. Okay, Oracle is a very important database software. Okay, Microsoft Access and Oracle are example of relational database. Next is structure of database. Okay, structure of database. First is table. A database files logically organized in form of rows and columns called table. Okay, मैंने पहले ही बोला टेबल क्या है, जो कि रोज और कॉलम का जो इंटरसेक्शन है उसको हम लोग टेबल बोल सकते हैं। ओके, इन ए रिलेशनल डेटाबेस टर्मिनोलॉजी द रोज ऑफ ए टेबल कॉल्ड रिकॉर्ड। ओके, रिकॉर्ड टुपल और एंड द कॉलम इज कॉल्ड एट्रीब्यूट और फील्ड। ओके, आप लोग यहाँ पे देख पाओगे मैं फील्ड के बारे में बोल रहा था, जैसे कि रोल नंबर, सेक्शन, उस तरह से नेम ऑफ द स्टूडेंट, मार्क्स, मैक्सिमम नंबर, परसेंटेज, रिजल्ट, ये हो गया पूरा जो पूरा का पूरा फील्ड हो गया। ओके, फील्ड। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो रिकॉर्ड्स है हम लोगों ने उस पर रिकॉर्ड डाला है। ओके, नाउ फर्स्ट इज फील्ड। द कॉलम ऑफ द टेबल आर कॉल्ड फील्ड। ओके, द कॉलम, first column, okay, first column of the table called field actually defines the attributes of the all records of a table. For example, name of the student hold the name of the percentage, will hold the percentage। okay, so आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि फील्ड क्या होता है, जो कि हेडिंग होता है। जैसे कि हम लोग कोई भी टेबल क्रिएट करने से पहले देते हैं उसको हम लोग फील्ड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज रिकॉर्ड। द रोज ऑफ ए टेबल कॉल्ड रिकॉर्ड्स। फॉर एग्जांपल साइज 130, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे जो हम लोगों ने डेटा को इनपुट किया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट इज डेटा। एंड इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड डेटा। दैट मीन्स यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि हर एक सेल में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे एक नेम दिया गया है, ये भी एक डेटा है, यहाँ पे मार्क्स दिया गया है, ये भी एक डेटा है। सब इंडिविजुअल अलग अलग एक डेटा होता है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेरीज। Queries is very important. The question that are based on the data given in the database are called queries. They allow to extract data or information about the field, record or summarize of the table of database. Query perform action like addition, deletion and updation on the data. Next is form. The input screens designed to simplify the data entry process called form. Okay, a computer user generally prefers to enter data well designed form rather than a table. Okay, next is report. The layout design of a viewing or printing the data of a database are called report. Okay, हाँ, जब हम लोग प्रिंट करेंगे उसको डेटा को, उसको हम लोग रिपोर्ट्स बोलेंगे। ओके, by using the reports you can view the records of a table well designed layout as per your requirement. Okay, next is Microsoft Access. Microsoft Access is a part of a Microsoft Office suite। ओके, मैंने पहले ही बोला कि माइक्रोसॉफ्ट जो पैकेजिंग सॉफ्टवेयर है उसमें बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर रहता है, जैसे लाइक वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, एक्सेस हो गया। ओके, उसी में से माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस का जो सुइट है उसमें से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज ए डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ओके, इट इज ए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोवाइड्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। Here, data is stored in form of tables and relationship between table is maintained using the common field। okay, जब भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक्सेल में क्या होता है, एक टेबल से दूसरी टेबल में लिंक नहीं होता है। ओके, लेकिन एक्सेस में हम लोग एक टेबल से दूसरी टेबल को लिंक कर सकते हैं। ओके, लेकिन हम लोग जब लिंक करेंगे तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉमन फील्ड होना चाहिए। ओके, कॉमन फील्ड आप लोग इस पिक्चर में देख पाओगे, यहाँ पे आईडी, जो टेबल का जो आईडी है यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। दैट मीन्स यहाँ पे कॉमन फील्ड हम लोगों को एक
रखना होगा, कॉमन फील्ड हम लोग को रखना होगा, उसी से हम लोग क्या कर पाएंगे कि एक टेबल से दूसरे टेबल पे हम लोग लिंक कर पाएंगे। ओके, and it prevents duplication of data. Okay, in both of the given tables employee id is a common field, hence relationship can be built among these two tables. Okay, यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी का जो सेक्शन है ये क्या होता है, दोनों टेबल में ही कॉमन दिख रहा है हम लोग को, हम लोग इसी से क्या कर सकते हैं, एक टेबल से दूसरे टेबल को लिंक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। Microsoft Access allow to export data and import from word processing files, spreadsheet and database files directly. Okay, हम लोग कहीं से भी उसको कोई भी डेटा को हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं Microsoft Access में। Data can be broken down to the smallest usable bit. For example, a person name would be broken down into 4 separate sections, mainly title, first name, middle name and last name. Okay, next is each record has a unique identifier. This distinguishes a particular record from any other record. That means यहाँ पे जो हर एक रिकॉर्ड होता है वो एक यूनिक होता है। ओके, इसीलिए हम लोग एक डेटा को पर्टिकुलर एक डेटा को हम लोग दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इट हेल्प्स टू रिड्यूसिंग द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। मैंने पहले ही बोला कि डुप्लीकेट डेटा नहीं होता है। ओके, दिस एप्लीकेशन मेक्स श्योर दैट ओनली वन कॉपी ऑफ डेटा इज अवेलेबल। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द डेटा सिक्योरिटी फीचर्स। Reports are used to present information in a meaningful format, and queries are used to access the required information from a database. Okay, so these are the main features of using Microsoft Access. Next is components of MS Access 2016. ओके, आप लोग यहाँ पे एक विंडो देख पा रहे होंगे, ये दिस इज द विंडो ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ओके, जब आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करोगे तब आप लोगों के सामने सेम यही विंडो आप लोगों के सामने आएगा। ओके, सो फर्स्ट इज क्विक एक्सेस टूल बार, नेक्स्ट इज टाइटल बार। सो फर्स्ट इज टाइटल बार। टाइटल बार इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द विंडो। आप लोग यहाँ पे देख पाओगे एकदम टॉप ऑफ द विंडो पे टाइटल बार है। इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द डेटाबेस विच वी आर करेंटली वर्किंग। जब हम लोग कोई भी डेटाबेस के ऊपर काम करेंगे उसी डेटाबेस का जो नेम होगा वो एकदम ऊपर दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट इज क्विक एक्सेस टूल बार। ओके, क्विक एक्सेस टूल बार एट द प्रेजेंट ऑफ द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। आप लोग यहाँ पे देख पाओगे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे है। ओके, इट कॉन्टेस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कॉमर्स लाइक सेव, अंडू एंड रीडू, सेम एज वर्ड। ओके, सेम एज वर्ड। इट कैन ऑल्सो बी कस्टमाइज एंड एडिशनल कॉमन्स एज पर योर चॉइस। आप लोग यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो, सेम है वर्ड की तरह ही है, एक्सेल की तरह ही है। ओके, नेक्स्ट इज रिबन। ओके, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे रिबन। रिबन को हम लोग क्या बोलते हैं, द ग्रुप ऑफ टूल बार्स को हम लोग रिबन बोलते हैं। ओके, रिबन कॉन्सिस्ट ऑफ वेरियस टैब्स सच एज होम टैब। आप लोग यहाँ पे देख पाओगे होम फाइल टैब, होम टैब, क्रिएट टैब। ओके, बहुत सारा के यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैब्स यहाँ पे दिया गया है। ओके, when you click a tab, a set of relevant comments is displayed. Each tab on a ribbon has a group of comments that perform a specific task. हम लोग जब भी कोई भी एक टैब को हम लोग, जैसे कि यहाँ पे फील्ड का जो टैब है क्लिक किया गया है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा टास्क है जो कि हम लोग उसमें से परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज नेविगेशन पैन। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे नीचे एकदम नीचे नेविगेशन पैन है। नेविगेशन पैन इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड टू द एक्सेस विंडो। Access database has 4 main components called database object. First is table, form, queries and report. Okay, table, form, सॉरी ये वाला जो है इसको हम लोग नेविगेशन पैन बोलते हैं। यहाँ पे ही हम लोग क्या देख सकते हैं, टेबल देख सकते हैं, फॉर्म देख सकते हैं, क्वेरी देख सकते हैं एंड रिपोर्ट देख सकते हैं। ओके, देयर नेम्स कैन बी seen in the navigation pan. When you enter the data in a workspace, you will find this option in Access navigation pan. दैट मीन्स हम लोग जब भी कोई भी टेबल क्रिएट करेंगे यहाँ पे आप लोग देख पाओगे टेबल 1 लिखा हुआ है। टेबल हम लोग जब क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे शो होगा। फॉर्म अगर हम लोग क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे ही शो होगा। क्वेरीज अगर हम लोग कोई भी ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ पे ही शो होगा। ओके, नेक्स्ट इज नेविगेशन बटन। ओके, नेविगेशन बटन ये है। ओके, नेविगेशन बटन आर यूज टू नेविगेट थ्रू द रिकॉर्ड्स। दिस बटन बेसिकली डिस्प्ले द करेंट रिकॉर्ड नंबर इन एन ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज वर्क स्पेस।
this is the workspace. Okay, this is the workspace. Workspace is a place where you enter the data and carry out other data बेस टास्क। ओके, आप लोग जब यहाँ पे डेटा को फिल करते रहोगे तो ये पूरा का पूरा जो वर्क स्पेस है वो भर जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट टैब्स। ओके, ऑब्जेक्ट टैब्स, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि ऑब्जेक्ट टैब दिया गया है यहाँ पे टेबल 1। हम लोग टेबल 1 में काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक टैब ओपन हो गया है उस टेबल 1 नेम से। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट टैब बोलते हैं। The currently open object tab appears above the workspace. The appear in the form of a tab. This is called object tab. Okay, you can click this tab to display the content of any workspace. That means यहाँ पे जो टैब यहाँ पे जो ओपन हुआ है, मान लिया हम लोगों ने यहाँ पे टेबल 2 भी किया है, टेबल 3 भी किया है, और यहाँ पे टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 तीनों ही टैब ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, टैब को क्लिक करके जो डेटा एक एक इंडिविजुअल जो टेबल के अंदर है उसको हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज स्टेटस बार। स्टेटस बार तो पता ही होगा आप लोगों को किस लिए यूज होता है। स्टेटस बार इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द एक्सेस विंडो। इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द करंट व्यू ऑफ ए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। इट डिस्प्ले 4 व्यू बटन्स। ओके, लास्ट इज टेल मी व्हाट टू डू। टेल मी व्हाट टू डू इज यूज टू गेट हेल्प ऑन एनी ऑफ द कमांड्स और टॉपिक रिलेटेड एक्सेस। ओके, आप लोग यहाँ पे सर्च जो वहाँ देख सकते हो, सर्च यहाँ पे एक सर्च आइकॉन है, इससे आप लोग क्या कर सकते हो, कोई भी कॉमन रिलेटेड क्वेरी यहाँ पे क्वेश्चन लिख के आप लोग देख सकते हो कि उसका एक्चुअल में कौन से चीज़ के लिए यूज होता है। ओके, सो दीज आर द ऑल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेस विंडो। ओके, सो टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन, नेविगेशन पैन, नेविगेशन बटन, वर्कस्पेस, ऑब्जेक्ट, स्टेटस बार एंड टेल मी व्हाट टू डू। ओके, नेक्स्ट इज starting access 2016. Okay, how to start access 2016? This is simple, very simple step. First of all, click on the start button, then scroll the list and list on the access 2016. access 2016 window will be appear. सो बेसिकली आप लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, जिस यहाँ पे एक स्टार्ट बटन दिख रहा होगा, सबको पता है स्टार्ट बटन कौन सा है, और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने से एक्सेस ओपन होता है। आप लोग यहाँ पे सर्च बार में भी एक्सेस लिख के उसको ओपन कर सकते हो। ओके, next is creating a new database. Okay, creating a new database. So basically there are two ways to create a new database. Okay, first is open access 2016, access window will be appear. Okay, ये वाला आपका जो जब आप लोग एक्सेस को ओपन करोगे तो सेम एज ऐसा ही विंडो आप लोगों के सामने ओपन होके आएगा। ओके, देन क्लिक ऑन द ब्लैंक डेटाबेस। आप लोग यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस देख पा रहे होंगे, इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना होगा। ओके, then the blank database window will be open and promote the user to specify the file name, enter the name into the file box। आप लोग यहाँ पे देखोगे कि ये जो जब आप लोग blank database पे क्लिक करोगे तब आप लोग के सामने ये ओपन होके आएगा। ओके, और यहाँ पे आप लोग को क्या करना होगा कि यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि नेम दिया गया है, उसको आप लोगों को एज पर योर डेटाबेस आप लोग वहाँ पे उसका नेम दे सकते हो। ओके, नेम दे सकते हो, और नेम देने के बाद आप लोग कहाँ पे सेव करना चाहते हो वो यहाँ से आप लोग लोकेशन भी उसको डाल सकते हो। ओके, कहाँ पे आप लोग सेव करना चाहते हो। देन नंबर 4 स्टेप इज क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। आप लोग यहाँ पे क्रिएट बटन देख पाओगे, उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना होगा। ओके, सो बेसिकली आप लोगों को क्या करना होगा, एक्सेस को ओपन करने के बाद ये नया विंडो आएगा, वहाँ से जाके आप लोगों को ब्लैंक जो डेटाबेस है उसको ऊपर क्लिक करना होगा। उसको क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने ये वाला नया विंडो आएगा। उसके बाद नेम को स्पेसिफाई करना है और लोकेशन कहाँ पे आप लोगों को सेव करना है वहाँ का लोकेशन देना है। उसके बाद लास्ट स्टेप इज क्रिएट को प्रेस करना है। ओके, नेक्स्ट इज this will create the database with an empty tables as table 1. The table has an empty rows and the cursor is placed on the first empty cell in the click to add column. The sign indicates that it is ready to receive a new record. आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे टेबल 1 बोल के ऑटोमेटिकली एक टेबल ओपन हो गया है। ओके, टेबल 1 बोल के यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक टेबल ओपन हो गया है, और यहाँ पे कॉर्नर पे स्टार मार्क बोल के है। स्टार मार्क मीन्स दैट दिस टेबल इज रेडी टू रिसीव न्यू रिकॉर्ड्स। ओके,
Next is access create the fast id automatically. Okay, fast id automatically. Field id automatically. It is the primary key of the table. It contains an entry that uniquely identify the record. यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि प्राइमरी की आईडी बोल के लिखा हुआ है. ओके, यही है टेबल का यूनिक आइडेंटिफिकेशन. कोई भी टेबल हम लोग जब क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आईडी बोल के एक जो कॉलम है वो ओपन होके आ जाएगा. ओके, इससे आप लोग क्या कर सकते हो कि ये जो आईडी है ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है ईच एंड एवरी टेबल का डेटा का. ओके, द डेटा इज टाइप ऑफ द फील्ड इन ए ऑटो नंबर. दैट मीन्स यहाँ पे 1 2 3 4 करके करके ऑटोमेटिकली यहाँ पे होता रहेगा. नेक्स्ट इज एंटर द डेटा देन प्रेस द टैब की. ए न्यू कॉलम विल बी एडेड ऑटोमेटिकली. आप लोग जब यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे फील्ड 1 हम लोगों ने लिख दिया है, उसके बाद टैब प्रेस करने से दूसरा कॉलम ओपन हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज क्रिएटिंग ए डेटाबेस यूजिंग टेम्पलेट्स. हम लोग टेम्पलेट्स तो बहुत सारी जगह में यूज़ किए हैं, पावर पॉइंट में भी यूज़ किए हैं. ओके, तो टेम्पलेट से कैसे हम लोग डेटाबेस को क्रिएट करेंगे. टेम्पलेट्स मेक द डेटाबेस क्रिएशन प्रोसेस इजी एंड फास्ट. टेम्पलेट्स आर एक्चुअली रेडी टू यूज डेटाबेस ऑब्जेक्ट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन एक्सेस 2016. Select the templates from a display list. You can also look a new templates by clicking on the search bar. Okay, आप लोग यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे टेम्पलेट्स दिया गया है. ओके, यहाँ से आप लोग चूज कर सकते हो और यहाँ पे एक सर्च बार है. सर्च बार से भी आप लोग क्या कर सकते हो कि जो टेम्पलेट्स है उसको आप लोग सर्च कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट इज द सिलेक्टेड टेम्पलेट्स विंडो विल बी ओपन एंड प्रोमोट द यूजर टू एंटर द फाइल नेम. सेम होता है. ओके, सेम प्रोसेस है. यहाँ पे आप लोगों को फाइल नेम देना है, यहाँ से आप लोगों को लोकेशन देना है, देन आप लोगों को यहाँ पे क्रिएट का बटन प्रेस करना है. ओके, देन ए डेटाबेस विल बी क्रिएटेड. द टेबल विल बी डिस्प्ले इन द फॉर्म व्यू. आप लोग यहाँ पे देख पाओगे पहले तो हम लोग जो कर रहे थे वहाँ पे टेबल 1 ही था खाली और वहाँ पे कोई भी फील्ड भी नहीं था. लेकिन ये जो टेम्पलेट्स है यहाँ पे ऑलरेडी रेडीमेड जो टेबल है वो क्रिएट हुआ है. ऑलरेडी फील्ड भी यहाँ पे सब दिया गया है. ओके, आप लोग यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, फील्ड नेम सब चेंज कर सकते हो. ओके, select the add existing field button to tools group on the design tab. A field list tasks pane will be arrive. आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि add existing field यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया इसको आप लोगों को क्लिक करने के बाद आप लोग देख पाओगे कि यहाँ पे बहुत सारा फील्ड्स दिया गया है. आप लोग यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ से फील्ड को ड्रैग करके माउस से ड्रैग करके यहाँ पे प्लेस कर सकते हो. इससे क्या होता है कि आप लोगों को बहुत ही जल्दी से कोई भी एक टेबल आप लोग क्रिएट कर पाओगे. ओके, नेक्स्ट इज व्यूज ऑफ ए टेबल. देयर आर टू views to work in a table: design view and data sheet view. Okay, these views are very important. Okay, first is design view. Design view is divided into following two parts. First is field grid pane and second is field report pane. Okay, so first is field grid pane. Here we define the field name, data type and description. आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे एक जो प्रॉपर्टीज टाइप का निकल के आया है. ओके, आप हम लोग जब भी यहाँ पे कोई भी फील्ड नेम देंगे, फील्ड नेम जैसे कि हो गया मान लिया स्टूडेंट्स नेम, तो यहाँ पे आप लोग टेक्स्ट करना है. यहाँ पे अगर रोल नंबर हो गया तो यहाँ पे नंबर करना है. ओके, इस तरह से हम लोगों को यहाँ पे जो फील्ड है उसको हम लोगों को भरना होगा. ओके, एज पर योर रिक्वायरमेंट जितना आप लोगों को फील्ड लगेगा आप लोग यहाँ पे दे सकते हो. यहाँ से भी आप लोग दे सकते हो ऑटो नंबर. ओके, यहाँ पे डेटा टाइप कैसा होगा, टेक्स्ट होगा कि नंबर होगा, आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो. ओके, यहाँ से आप लोग दे सकते हो डेटा टाइप. ओके, नेक्स्ट इज फील्ड प्रॉपर्टीज पैन. हेयर द वी सेट द प्रॉपर्टीज फॉर द फील्ड ऑफ द टेबल. मैंने पहले ही बोला कि ये प्रॉपर्टीज टेबल है. ओके, यहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हम लोग सेट कर सकते हैं. ओके, जैसे कि मान लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम दे दिया, यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया. ओके, यहाँ पे भी हम लोग को टेक्स्ट देना होगा. ओके, अगर मान लिया यहाँ पे क्लास दिया है तो फिर हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट और नंबर दोनों ही डाल सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज डेटा शीट व्यू. Here the table is displayed as the grid.
the data can be entered directly into the tables, rows and columns. Column indicate the field and row indicate the records. ओके, आप लोग यहाँ पे दे सकते हो कि हम लोग यहाँ से भी जाके यहाँ पे फील्ड को भरेंगे, उसके बाद टैब प्रेस करने के बाद दूसरा फील्ड आ जाएगा, तीसरा फील्ड आ जाएगा। ओके, इस तरह से हम लोग डेटा को भी इस तरह से भी डेटा शीट व्यू से भी हम लोग भर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज switching between views. Okay, we can switch between the datasheet view to design view. Follow the steps. First of all, click on the home tab. आप लोग यहाँ पे home tab देख सकते हो और यहाँ पे व्यू बोल के एक ऑप्शन दिखाई देगा, उससे आप लोग क्या कर सकते हो, डेटा शीट व्यू भी देख सकते हैं और डिज़ाइन व्यू भी देख सकते हो। डिज़ाइन में पहले आप लोगों को क्या करना होगा, फील्ड भर लेना होगा, उसके बाद यहाँ से क्लिक करके आप लोग कैसा डिज़ाइन बना है वो भी आप लोग चेक कर सकते हो। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट इज रूल्स फॉर नेमिंग ए फील्ड। A field name can range from 1 to 64 कैरेक्टर। दैट मीन्स जो यहाँ पे फील्ड दिख रहा होगा आप लोगों को, जैसे कि स्कूल नेम हो गया, क्लास हो गया, स्टूडेंट्स नेम हो गया, ये सब फील्ड का नेम है वो 1 से लेकर 64 कैरेक्टर तक ही हम लोग डाल सकते हैं। ए फील्ड नेम इंक्लूड्स लेटर, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर। ओके, ए फील्ड नेम कैन नॉट बी विद ए ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस आप लोग यहाँ पे डाल नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट इज डेटा टाइप। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जब हम लोग डिज़ाइन व्यू में थे, यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में थे, तब यहाँ पे डेटा टाइप जो है वो कॉलम है, इसको हम लोगों को तो स्पेसिफाई करना था जब हम लोग फील्ड डालेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कौन सा डेटा टाइप किस लिए यूज़ होता है। ओके, so first is auto number. Okay, अच्छा, data type declares the type of data particular field can be used for. Once the data type for the field is specified, another data type cannot be entered for the particular field. अगर मान लिया हम लोगों ने स्टूडेंट्स नेम दिया, वो बेसिकली मान लिया कि वो टेक्स्ट होगा, अगर टेक्स्ट की जगह हम लोग अगर नंबर डालेंगे तो वो फील्ड में जो हम लोग वहाँ पे जो सेल होगा उस पर वो एंटर हम लोग नहीं कर पाएंगे। ओके, so first is auto number. The auto number field creates a sequential number on a creation of a new record. It mainly used for primary key. Okay, the value of a auto number field cannot be changed. Okay, जो ऑटो नंबर का जो वैल्यू है वो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। मेनली वो सीरियल नंबर के लिए हम लोग दे सकते हैं और उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइमरी की भी कर सकते हैं। ओके, short text. The short text data type contains the value that are in the form of text or a combination of text and numbers. It does not require calculation with the maximum length of 255 character. The field stores value like address and phone number। से मैंने पहले ही बोला कि हम लोग टेक्स्ट और नंबर दोनों एक साथ डाल सकते हैं शॉर्ट टेक्स्ट में। नेक्स्ट इज लॉन्ग टेक्स्ट। द लॉन्ग टेक्स्ट डेटा टाइप contains value that are form of text and numbers with the maximum length is 65,536 character. Okay, next is number. The number data type can be stored numeric value up to 16 bytes. Next is date and time. The date and time is used to store the date and time, which is data may be up to 8 bits. ओके, सो आप लोग इसको, ये जो डेटा टाइप है इसको आप लोग पढ़ सकते हो। जैसे कि करेंसी हो गया, दी करेंसी टाइप स्टोर्स वैल्यू इन ए मनी फॉर्मेट व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर फिनेंशियल डेटा। जो लोग फिनेंशियल सर्विस में काम करते हैं उन लोगों के लिए एक करेंसी डेटा टाइप बहुत यूजफुल है। ओके, नेक्स्ट इज येस और नो। द लॉजिकल डेटा टाइप इज यूज्ड व्हेन only one of the two given value is valid. yes or no, true false और male और female। okay, इस तरह से। OLA object data type is used to insert spreadsheet, document, presentation etc. जैसे कि OLA हम लोगों को पता होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी फाइल को यहाँ पे हम लोग लिंक कर सकते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट लिंकिंग बोला जाता है इसको, हम लोग कोई भी स्प्रेडशीट हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, हाइपर लिंक हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, हम लोग वहाँ पे आसानी से लिंक कर सकते हैं। ओके, इसी को हम लोग बोलेंगे ओएलई ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज हाइपर लिंक, तो आप लोगों को पता होगा। द हाइपर लिंक डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर वेब एड्रेस। हम लोग हाइपर लिंक से वेब एड्रेस को भी स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अटैचमेंट। द अटैचमेंट डेटा टाइप इज यूज टू अटैच इमेजेस, स्प्रेडशीट, डॉक्यूमेंट, चार्ट एक्सेट्रा। Calculated. The calculated data type is used to create field which calculate the values. Next is
lookup wizard. Okay, lookup wizard creates a field whose values are chosen from the values in another table, query, or list values. Display the list of values you can choose from. Okay, so these are the all data types, okay, in access field. Next is setting data type for a field. Okay, setting data type for a field. So setting data type, follow, you have to follow some steps. First of all, open the table in datasheet view. Okay, open the table in datasheet view. आप लोगों को क्या करना होगा, datasheet view में आप लोगों को टेबल को ओपन कर लेना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे टेबल देख पा रहे होंगे, और ये जो व्यू है ये पूरा का पूरा डेटाशीट व्यू में ओपन हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्लिक ऑन द ऐड, click to add header and select the desired data type in the from the drop down menu. आप लोग यहाँ पे देख पाओगे ड्रॉप डाउन मेनू में जो डेटा टाइप है वहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा। आप लोग डिज़ाइन व्यू में भी जाके इसको सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे डेटा शीट व्यू में भी आप लोग ये ड्रॉप डाउन जो मेनू है यहाँ से भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। एंटर द फील्ड नेम फॉर द पर्टिकुलर डेटा टाइप। ओके, एंटर द फील्ड नेम फॉर द पर्टिकुलर डेटा टाइप। सेटिंग डेटा टाइप इन डिज़ाइन व्यू, मैंने पहले ही बोला कि आप लोग डिज़ाइन व्यू में जाके आप लोग चेंज कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन इन डिज़ाइन व्यू, आप लोगों को क्या करना होगा, टेबल ओपन करके उसको डिज़ाइन व्यू में ले जाना है। यहाँ से व्यू आप लोग देख पाओगे होम टैब के अंदर व्यू, उसके बाद डिज़ाइन व्यू। एंटर द फील्ड नेम, बाय डिफॉल्ट इट इज़ असाइन टू द टेक्स्ट डेटा टाइप। ओके, टेक्स्ट डेटा टाइप होता है। Click on the drop down arrow in the data type column and select the desired data type. आप लोग जब यहाँ पे आईडी के नीचे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि फील्ड नेम हम लोग डाल रहे हैं। ओके, फील्ड नेम हम लोग डाल रहे हैं, जैसे कि क्लास लिख दिया, तो यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट हम लोगों ने डाला। क्लास हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिक में भी लिख सकते हैं और रोमन में भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसलिए हम लोगों ने शॉर्ट टेक्स्ट डाला है वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट इज प्राइमरी की इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, primary is the key in the relational database is that unique for each record. It is a unique identifier such as a driver license number, telephone number और vehicle identification number. Okay, आप लोगों को पता होगा प्राइमरी की जो है वो एक रिलेशनल डेटाबेस का यूनिक आइडेंटिफाई है। ओके, हम लोग उसको उसी प्राइमरी की से हम लोग कोई भी टेबल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, ए रिलेशनल डेटाबेस मस्ट हैव वन एंड ओनली प्राइमरी की। ओके, अगर कोई भी हम लोग रिलेशनल डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो उसका एक ओनली वन प्राइमरी की ही होना चाहिए। ओके, प्राइमरी की मस्ट कंटेंट यूनिक वैल्यूज, कैन नॉट कंटेंट नल वैल्यूज। नल मीन्स जीरो। ओके, जीरो, कोई भी ब्लैंक वैल्यू हम लोग नहीं डाल सकते। ओके, उसको हम लोग ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ओके, कुछ ना कुछ वैल्यू हम लोग को वहाँ पे देना है। इफ वी consider employee table, then for this table IMP can be a primary key, as no two employees can be have same ID। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे दिया गया है। एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट जो आईडी है जो प्राइमरी की है, एम्प्लॉय आईडी मैंने पहले जो टेबल में दिखा रहा था वहाँ पे एम्प्लॉय आईडी सेम है। दैट मीन्स जो एक जो पर्सन हो गया उसका एक आईडी है और दूसरा एक पर्सन है उसका तो डिफरेंट आईडी होगा, इसीलिए हम लोग एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की यहाँ पे बोल रहे हैं। सिमिलरली हमारे स्कूल में भी अगर एक्सेस डेटाबेस फॉलो किया जाए तो हम लोग क्या करेंगे कि क्लास को देखेंगे। ओके, क्लास को देखेंगे और उसमें से हम लोग रोल नंबर को सिलेक्ट प्राइमरी की करेंगे। ओके, रोल नंबर, क्योंकि एक रोल नंबर में एक ही जो स्टूडेंट है वो रह सकता है। ओके, उसमें से क्या करेंगे हम लोग, क्लास में से हम लोग रोल नंबर जो रोल नंबर होता है 1 2 3 4 5, उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट्स आईडी हम लोग क्रिएट करेंगे, क्योंकि सेम रोल नंबर में दो नहीं हो सकता। ओके, सो आप लोगों को क्या करना होगा, we cannot take name as the primary key because people can have same names. The primary key works as a tool that keeps a check on the table that every record entered the unique key. So you have to follow some steps. First of all, click on the design tab, then click on the primary key button in the tool group। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे primary key। okay, a field will be set as a primary key indicates by a symbol of a small key in yellow color। जब भी आप लोग कोई भी, अगर आप लोगों ने कोई भी डेटा यहाँ पे फील्ड
फील्ड आप लोग दे सकते हो, बहुत सारा फील्ड आप लोग दे सकते हो। आप लोग अगर चाहो जिस फील्ड को भी चाहो कि यूनिक आईडी आप लोग को क्रिएट करना है, तब आप लोग क्या करके उसके उसी फील्ड को सिलेक्ट करके यहाँ पे जो प्राइमरी की है उसको आप लोग को सिलेक्ट करना होगा। तब क्या होगा कि जो फील्ड आप लोगों ने सिलेक्ट किया है वो फील्ड आप लोगों का प्राइमरी की हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स आप लोगों को क्या करना होगा, पहले तो आप लोगों ने यहाँ पे फील्ड क्रिएट कर लिया, उसके बाद आप लोगों को जो लगेगा कि ये जो फील्ड है इसको हम लोग प्राइमरी की करना चाहते हैं, तो फिर उसको सिलेक्ट करके जस्ट यहाँ पे प्राइमरी की जो ऑप्शन है इसको आप लोगों को सिलेक्ट कर देना है। तब आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे एक की का साइन ऑटोमेटिकली आ गया है। दैट मीन्स जो फील्ड आप लोगों ने सिलेक्ट किया वो आप लोगों का प्राइमरी की क्रिएट हो गया है। ओके, नेक्स्ट इज saving a database. Okay, how to save a database. I hope that all of you know how to save a database because you have already learned in Excel. Okay, Excel, Word, etc. So you have to follow some steps to save a database. First of all, click on the file tab. आप लोगों को पता होगा फाइल टैब में क्लिक करने के बाद these are the menu. Okay, अंडर द फाइल टैब। ओके, फाइल टैब में क्लिक करना होगा, देन सिलेक्ट द सेव ऑप्शन। ओके, सेव ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि सेव ऑप्शन इज हियर, आप लोगों को सेव में क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट ए सेव एज डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर, स्पेसिफाई द नेम ऑफ द टेबल नेम बॉक्स। ओके, यहाँ पे सेव एज डायलॉग बॉक्स है और यहाँ पे जो टेबल नेम है उसको आप लोगों को दे देना है। ओके, टेबल जो नेम है उसको आप लोगों को दे देना है, पहले भी आप लोग डाल सकते हो टेबल नेम। ओके, यहाँ पे भी आप लोग सेव करने के टाइम भी आप लोग टेबल का जो नेम है उसको आप लोग डाल सकते हो। ओके, देन क्लिक ऑन द ओके बटन। आप लोग यहाँ पे ओके बटन देख पाओगे, ओके बटन पे आप लोगों को प्रेस करना है। ओके, देन योर डेटाबेस विल बी सेव्ड। ओके, so basically there are four steps to be saved, four steps to be followed to save a database. First of all, click on the file tab, then select the save option from the menu, then a save as dialog box will be appear, then you need to specify the database name. Okay, then select the OK button. Okay, next is closing a database. Okay, to close a database, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द फाइल टैब। ओके, फाइल टैब सेम एज फाइल टैब में आप लोगों को क्लिक करने के बाद ये जो मेनू है सेम मेनू ओपन हो जाएगा। देन सिलेक्ट द क्लोज ऑप्शन फ्रॉम द डिस्प्ले मेनू। ओके, यहाँ पे आप लोग क्लोज ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इसको आप लोगों को क्लिक करना होगा। ओके, इसको क्लिक करने के बाद आप लोग देख पाओगे कि जो डेटाबेस का जो विंडो था आप लोगों के सामने वो क्लोज हो गया है। नेक्स्ट इज opening an existing database. Okay, so to open an existing database you have to follow some steps, same steps, click on the file tab, same file tab। Okay, file tab में आप लोगों को जाके क्लिक करना होगा, then select the open option from the drop down menu। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ओपन ऑप्शन है, ओपन ऑप्शन में आप लोगों को क्लिक करना होगा, then select the database from the recent list and click on it, the selected database will be open। आप लोग यहाँ पे देख पाओगे जो करंट रिसेंट आप लोगों ने डेटाबेस को क्रिएट किया है, यहाँ पे आप लोगों का लिस्ट सामने ओपन होके आएगा। ओके, आप लोग यहाँ से आप लोग अगर जो डेटाबेस आप लोगों ने क्रिएट किया है वो यहाँ पे होगा तो आप लोग यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे दिस पीसी ऑप्शन भी देख सकते हैं। यहाँ से आप लोग जहाँ जिस ड्राइव में आप लोगों ने अपना डेटाबेस को स्टोर किया है वहाँ से भी आप लोग सिलेक्ट करके इसको ओपन कर सकते हैं। ओके, so these are the steps to be followed to open an existing database in a Excel file। Okay, so I hope that all of you understand today's topic। आप लोगों को क्या करना होगा कि जैसे हम लोगों का जो एग्ज़ाम होता है शॉर्ट क्वेश्चन होता है, मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन होता है, तो फिर आप लोगों को जो चैप्टर है पूरा अच्छी तरह से पढ़ना होगा, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। ओके, इसीलिए आप लोगों को अच्छी तरह से चैप्टर को अच्छी तरह से फॉलो करना होगा और हर एक टॉपिक, हर एक जो स्टेप्स है, हर एक चीज़ आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही आप लोगों को समझ में आएगा। और एक चीज़ आप लोगों को क्या करना होगा कि आप लोग अगर चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो एक्सेस डेटाबेस सॉफ्टवेयर है उसको आप लोग कहीं पे भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने से आप लोगों को हर एक स्टेप्स, हर एक जो प्रोसेस है एक्सेस डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, प्रैक्टिस करने से आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से कोई भी चीज़ होगा यहाँ पे एक्सेस में, कैसे डिज़ाइन व्यू में जाना है, कैसे टेबल क्रिएट करना है, कैसे फील्ड को सेट करना है, कैसे डेटा टाइप को सेट करना है, सब कुछ चीज़ आप लोग क्या कर पाओगे कि अच्छी तरह से समझ पाओगे। ओके, सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड टूडेज टॉपिक एंड I am ending
my discussion here, and in my next video I will start a new chapter. Okay, बट आप लोगों को क्या करना होगा, आज मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से बुक को पढ़ना होगा. ओके, सो today I am ending my discussion here. In my next video I will start a new chapter. Okay, so till then, take care, goodbye, and thank you.